अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एम आई ऑडिबल? आवाज़ मेरी क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके, लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास हम लोगों ने तागूत के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी एंड वी स्टॉप नियर नेगेशन एंड अफर्मेशन. Shazia, if you have written the notes, tell me the last point that we discussed. Who has written down the notes? Assalamu alaikum, ma'am. Alaikum assalam. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, we were discussing about the wisdom of sending messages. Okay, we spoke about the wisdom of sending messengers. All right. Did we discuss it? Did we complete it? No, ma'am. You just started. You said next class we will continue it. Okay. And the Quranic verse for reference, which was the last verse that I gave? 1723. It was 1722 and 1739, ma'am. Yes, 1723 also it's done. Right. Okay, so I think we've covered all these points. All right, let's begin. So Allah Azza wa Jal started the orders of the due rights with Tawheed and forbade its contradictory act, which is shirk. So basically, when we are saying that time and again in different verses, we are seeing that Allah Azza wa Jal is stressing, is emphasizing on Tawheed. And if we dig in and if we go back, we also figure out that the purpose of also sending different messengers and different prophets was also one of the reasons or one of the main duty of the messengers and prophets was to establish Tawheed. Here I'm giving you reference from Surah number 4, verse 36. Again, Allah Azza wa Jal says, worship Allah and do not associate anything with him. In this verse also, Allah Azza wa Jal does not specifically enjoin a certain act of worship, such as prayer or supplication. This is generally including all devotional acts. Likewise, Allah Azza wa Jal is warning us against all forms and acts of shirk. Therefore, he does not specifically prohibit certain acts or deeds of polytheism. All should be avoided. All. Yani, in any form, in any way. That's why you must have seen or heard one of the Masnoon Dua in regards to shirk, which in the wordings of which is that from the hidden and the apparent, the obvious and not so obvious. I mean, sometimes you might wonder that I'm not aware of it. It's a hidden shirk. I'm not even intending for it. But then too, it's happening. So we are seeking forgiveness from Allah Azza wa Jal from all forms of shirk. Major, minor, hidden, apparent, obvious, not obvious, intended, unintended, because it is that dangerous. Now, this particular verse is called the verse of the 10 due rights. And there are 10 rights that you are supposed to figure it out. I'm giving you the verse again. Verse 36 from Surah 4. Do you want me to type it? Should I put it in the chat as well? Surah number 4, verse 36. 10 हुक्म है इसमें से आपको मिलेंगे, जिसमें से 9 pertaining to this verse only I'm talking, जिसमें से 9 जो है 9 rights are towards Allah Azza wa Jal, stating that Allah, but when Allah stated Tawheed, he ordered it and forbade that which contradicts it.
So try to find out what are those rights mentioned specifically in this verse. अभी मैं आपको कुछ actions बताऊंगी. You will have to tell me कि ये action correct है या incorrect है. Okay, raise your hands. अगर आप answer करना चाहते हैं तो raise your hands. Number 1. Action है offering sacrifice for Allah Azza wa Jal alone. Is it correct or incorrect? Yes, Rashida. यस बाजी, सिर्फ अल्लाह के लिए ही करना है बाजी. Correct. Number 2, fearing the jinn that they might harm them and offering some sacrifice to please them. Yes, Shazia. No, ma'am, it is not allowed in this. Why it is not allowed, Shazia? Ma'am, everything we comes from Allah subhanahu wa ta'ala alone. So jinn can't do anything. So we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala alone. Mhm. And what about the natural fear? Like, for example, I'm scared of lion. No, ma'am, that's a fear, but not. It's not. You can't sacrifice for someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, right, ma'am? Right. Can Yes. anyone explain this point also further? कोई इसको इस point को समझा सकता है? So मुझे समझ आएगी कि आपको कितना understand हो रहा है. Can anyone explain this point? जैसे मैंने पूछा शाजिया से कि I'm scared of lion, और मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप जिन के डर से आप. यस रशीदा, गो अहेड. हाँ बाजी, जैसे कि बहुत सारे दुआएं हैं ना, जैसा आयतल कुर्सी है खुद के सेफ्टी के लिए, पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ दुआएं हम पढ़ के, यानी कि जो डर रहता है उसे भगाने, और जो भी एनिमल्स हार्म करने वाले हैं, तो ये दुआएं हम, जब अल्लाह का कलाम हमारे जबान पे रहता है तो कोई हार्म नहीं हो सकता है. सही, आपने सोल्यूशन बताया. मैं वो नुक्ता जानना चाह रही हूँ कि इस नेचुरल फियर में और इसमें क्या फर्क है, क्या कर सकते हैं, और हमारी सोच क्या होनी चाहिए. ओके, लेट मी गो फर्दर अगेन. आई थिंक आप लोग को धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएगी और हम लोग इस पॉइंट पे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. ओके, नंबर 3, फास्टिंग टू प्लीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल अलोन. क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? फास्टिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. जी शाजिया. Yes, Baji, it's right. फास्टिंग ओनली फॉर द, Only यानी for the किसी sake. और चीज के लिए मैं किसी और एंटिटी के लिए रोजा नहीं रख सकती, राइट? Nice, ma'am. We can't keep. Okay. What about fasting to lose some weight and please Allah Azza wa Jal? Fasting to lose some weight and please Allah Azza wa Jal. उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सबा. Yes, ma'am. No, we cannot fast for losing weight. The intention should be solely for Allah. What happens if I do that? Ma'am, किस चीज में? कि अगर मैं फास्टिंग कर रही हूँ लूज वेट करने के लिए, तो फिर वो फास्टिंग नहीं हुआ ना, वो डाइटिंग हो गई. वो डाइटिंग हो गई. ओके, ऐसा क्यों सबा, ऐसा क्यों? Because Allah ने कहा है ना in the Quran that we have to fast in order to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, to increase our taqwa. And fasting is decreed upon the believing men and women. It's clear. Good. But there is one point that I want you to specify here. One point. Okay, wait, let me hear from Noor. Noor, आप बोलिए. क्योंकि ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है. Absolutely. जब यहाँ पर बहुत बड़ा नुक्ता था जो मैं आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है, रेफरेंस विद कुरान आ रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड फास्टिंग क्या है, क्या उमूर है फास्टिंग. फास्टिंग इज व्हाट? इट इज एन एक्शन ऑफ व्हाट? इट इज एन एक्शन ऑफ इबादा. उसके बाद स्लॉटरिंग व्हाट इज एन एक्शन? एक्शन किस चीज का है वो? इट इज एन एक्शन ऑफ इबादा. आस्किंग दुआ, it is an action of ibadah. So any ibadah of any form has to be directed to Allah Azza wa Jal alone. इस चीज को हमें समझना है. Sabha, you raised your hand. Did you raise your hand again or it was previous one? Okay, let me lower it. Okay, so हमें ये understand करना है कि any sort of ibadah
will be directed to Allah Azza wa Jal alone. अगर हम इबादा में किसी और को शरीक करते हैं, किसी और की तरफ डायरेक्ट करते हैं, तो directly, indirectly, it is a form of a shirk. Shirk purely means associating partners with Allah by ascribing to them what is exclusively for Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. ये बात आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जो चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानाहु व तआला के लिए है, वो आप वो दर्जा, वो लेवल, वो फीलिंग आप किसी और के लिए नहीं ला सकते. Shirk has two kinds. Of course, we all know it is major shirk and minor shirk. Major, if one commits it, then he will be outside the fold of Islam. Major shirk का ऐसा है, शिर्क कबीरा, कि अगर किसी से कमिट हो जाता है तो वो directly out of the fold of Islam है. Okay. What about minor shirk? Minor shirk will not remove one from Islam, but it is still unforgivable and one will be punished for committing it. Minor shirk में इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता, इस्लाम के फोल्ड में रहता है, लेकिन since it's a shirk, it is unforgivable और उसकी सजा जरूर मिलती है. What is the proof? Verse number 4, 40, Surah number 4, verse 48. Copy the reference, Surah number 4, verse 48. Okay, what do we learn from this verse? The verse actually is clarifying the prohibition of ascribing partners to Allah, as it is the gravest and the most abominable sin. यानी सबसे भयानक, dangerous, grave sin, जिससे हमें बचना है, इज्तनाब करना है पूरी तरह से. Avoidance of all forms and acts of shirk is a prerequisite for the validity of tawheed. एक बात आप समझ लीजिए, एक नॉर्मल लॉजिक, अगर हम उजाले में आ जाते हैं, उसका दूसरा मीनिंग क्या है कि हम डार्कनेस से दूर हैं. अगर हम तौहीद में या अपने आप को मुआहिद कहते हैं तो हम शिर्क से दूर हैं, वी आर नॉट मुशरिक. तो जरूरी है कि जब आप तौहीद परस्त हों या तौहीद को मानने वाले हों, which as a Muslim is your first step, अगर आप तौहीद में हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली अवे फ्रॉम शिर्क हैं. You cannot have gray areas in Islam. आप बोलोगे कि ये भी जारी, वो भी जारी, इनको भी खुश कर दूं, उनको भी खुश कर दूं, वो माबूदों की भी अनाज़बिल्लाह पूजा कर दूं, इबादत कर दूं. That cannot happen. इस्लाम में negation comes first. La ilaha. Okay. Negation first and then affirmation. So the both aspects cannot go hand in hand. अगर आप इधर हो white, then it's white. You leave the black. So there are no gray areas in Islam, especially in regards to Tawheed. Avoidance of all forms and acts of shirk is a prerequisite for the validity of Tawheed. So if you want to say I'm a muahid, I want to complete my Tawheed, I want to make my Tawheed total, then this is definitely a must, that you leave all forms, all forms of shirk. All kinds of shirk, according to the Arabic context of the verse, are categorically prohibited, whether it is minor or major. हमारी सोच या हमारा नजरिया towards life ऐसा होता है कि हम ना छोटी छोटी चीजों को ज्यादा मायने नहीं देते. We think that थोड़ी गुंजाइश है, और फिर उसी तरीके से वो सगीरा चीजें जमा हो के कबीरा बनती है. And that's very, very, very dangerous. और हमें हदीसें भी मिलती हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया है, खास तौर से हिडन एंड खफी शिर्क, सगीरा शिर्क, छोटे गुनाहों से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर जमा होके उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है. सो वी डेफिनेटली नीड टू बी केयरफुल. जहाँ पर शिर्क वाला कहीं पर भी आप सुने ना कि ये अमल के अंदर, ये अमल करने से नौज़ुबिल्लाह शिर्क का गुनाह मिलता है, तो उधर से आप हट जाएं. Don't even get close to the boundary, I would say. Stay away from shirk of all forms. It is not allowed to associate any partner with Allah Azza wa Jal, no matter how noble they are, whether an angel, a prophet, a righteous person or an idol. यानी शिर्क में ऐसा होता है ना कि लोगों की जो दलीलें होती हैं कि वो किसी एंजल की या किसी फरिश्ते, किसी प्रोफेट की, किसी मैसेंजर की, किसी नेक बंदे की, कोई वली अल्लाह की,
उनकी हुर्मत में एग्जैजरेशन कर जाते हैं और उस एग्जैजरेशन के वजह से वो शिर्क में मुब्तिला हो जाते हैं। अब वो अपनी चीज़ों को या अपने एक्शंस को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करें, वो कहें कि हम सजदा नहीं कर रहे, सजदा इबादा नहीं कर रहे हैं, हम एहतराम वाला सजदा कर रहे हैं, बट ऑल दैट, सजदा ताज़ीम कर रहे हैं, ऑल दैट कैन नॉट वर्क या कैन नॉट गेट रिड ऑफ वन फ्रॉम दी evils of shirk. तो ये कोई भी दलाइल, कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन इस चीज पर वर्क नहीं करता। तो ये जहन में हमें डेफिनेटली अपने दिलो दिमाग के अंदर फिट कर देनी है कि शिर्क ऑफ एनी फॉर्म हमें नहीं कमिट करना है। और इसीलिए दीन इस्लाम की नॉलेज ऑब्लिगेटरी कर दी गई है और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 years of his life was only talking about तौहीद। और इसीलिए हर नबी, हर रसूल हर वक्त तौहीद के बारे में ही लोगों को सिखाते पढ़ाते रहे हैं। Worship without tawheed is not valid. It is not enough to worship Allah. Rather, they must not associate anyone with him, because worship is not considered worship truly except when it is free from shirk. यानी इबादत की जो है कंप्लीट होने की या करने की जो कंडीशन है वो यही है कि वो अल्लाह के लिए सिर्फ पाक हो, only and only for the sake of Allah Azza wa Jal. As for worship that is contaminated with shirk, then it is no longer called worship. यानी अगर इबादत, any form of इबादत, अगर उसके अंदर शिर्क की गलाजत मिला दी जाए तो वो इबादत नहीं रहती। What is the reference? The reference comes from Surah number 18, verse 110. Whoever hopes to meet his Lord, let him do good deeds and not associate anyone in the worship of his Lord. यानी बार बार आप देखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल has made it so clear कि shirk will not be tolerated at all, absolutely. Shirk invalidates worship and no good deed is accepted with it, no matter how hard a person worships Allah. If he has some major shirk, then his deeds are all void. अगर आप notes लिख रहे हैं तो please ये point लिखिए. Shirk invalidates worship and no good deed is accepted with it. अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो शिर्क में मुब्तिला होते हैं, वो लोग बहुत सारी नेकियां करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, पानी पीने के सेंटर्स बनाएंगे, फ्री खाने का लंगर चलेगा, बहुत कुछ चलेगा। लेकिन अगेन go back to the lecture 1 and think about it कि क्या वो एक्सेप्टेबल है अल्लाह के पास। वो गुड डीड्स का जो कंपनसेशन है वो इसी दुनिया में मिलके इट विल बी क्लियर्ड ऑफ, टैलिड ऑफ, बट आखिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नथिंग। In fact, because of shirk, since shirk is unforgivable, तो जो भयानक पनिशमेंट है शिर्क की वो जो है उस बंदे को फेस करना पड़ेगी, which means all that efforts, all that money, all that good deeds, so-called good deeds, were all null and void. तो आप अगर छोटी से छोटी भी नेकियां करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका अकीदा तौहीद अगर हिला हुआ है और उस इबादा के अंदर थोड़े से भी कतरे ऑफ शिर्क मौजूद हैं तो वो पूरा का पूरा कंटामिनेटेड है. इट विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी नल एंड वॉइड. सो आई रिपीट अगेन, शिर्क इनवैलिडेट्स वर्शिप and no good deed is accepted with it, no matter how hard a person worships Allah. If he has some major shirk, then his deeds are all void. There is another reference coming from Surah number 39, verse 65. And it was already revealed to you and to those before you that if you should associate anything with Allah, your work would surely become worthless and you would surely be among the losers. इतना क्लियर फॉर्मूला कि वर्थलेस अगर हमें नहीं बनना है, लूजर हमें नहीं बनना है, तो क्या नहीं करना है? शिर्क नहीं करना है. It's a clear indication. Point number 5, Allah Azza wa Jal and his prophets
declared shirk the first forbidden act. जो first forbidden act था वो कौन सा था? Allah the Almighty said, "Say, O Muhammad, come, I will recite what your Lord has prohibited you from. Join not anything in worship with him." तो बार बार लगातार एक ही पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है, join not anything in worship with him. So Allah Azza wa Jal has clearly indicated time and again. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has clearly preached time and again, worship none but him. But लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनकी बात को इग्नोर करके या तो उनकी वर्शिप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दर्जे को एग्जैजरेट कर दिया, या फिर उन्होंने अपने ही माबूदों को लेकर चल पड़े. तो एंड ऑफ द डे तौहीद जो है वो सही तरीके से उन्होंने फॉलो नहीं की. The commands of Allah Azza wa Jal and the instructions of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam को उन्होंने फॉलो नहीं किया. तो तौहीद is the thing. Tawheed is the shortcut to success. The forbidden act is the act which, if one does it, he will be punished for committing it, and if he avoids it, he will be rewarded for avoiding it. Again, going back to lecture 1, let me see if any one of you remembers. मैंने कहा था कि दुनिया में हर चीजें जो है वो 5 कैटेगरी में तकसीम होती है. What are those 5 things? Can anyone repeat it for me if you remember? Yes, ma'am. Can I? Please go ahead. Yes. Ma'am, first one is halal, that is permissible. Mhm. Second one is mustahab, recommended. Mhm. Third one is makruh, that is dislike. Mhm. Fourth one is wajib, obligatory fard. Fifth one is haram, forbidden. Okay, barakallah feek. Can anyone explain further कि क्या होता है अगर हम वो चीज करते हैं या नहीं करते हैं तो, in regards of being punished or not punished, or what happens? Can anyone explain? Barakallah feek है शाजिया. कोई और बताएगा besides शाजिया? हादिया, आपका माइक ऑन है, आप बताना चाहती हैं? Okay, sister Rashida, go ahead. Sister Rashida, बोलिए. Unmute yourself. It's an obligatory deed. It's Yeah. an obligatory deed, Baji. We have to do. If we are not doing, we are punishable for that. You're explaining 5. For You're explaining generally, the I'm saying, 5? Baji. No, no. Are you Obligatory. explaining- 1 second. Are you explaining the 5 aspects? Yes, Baji. बोले पांचों बताइए. Explain the 5. Fard mane compulsory, we have to do. Okay. If we do it, Okay, then what wajib. happens? Are you looking through the notes or you're just randomly saying, Rashida? No, Baji. Justly, I'm saying, Baji. Okay. Just I'm saying. Okay. Shazia, do you want to explain it or I will repeat? Yes, ma'am. Can I say I have what I have written? I'll just say that, ma'am. Please, If it is because I halal, know- करे तो halal, that is permissible, ma'am. Hmm. If you do, it is halal. Then if mustahab, recommended, if you do it, it's good. If you do not do, then no problem. Makruh, dislike, if you do, if you do it, no problem, or not good. But if you do not do, it is very good. Then wajib, obligatory fard. If you do, then you get sawab, and if you do not do, if you do not do, then there is a punishable for that, obligatory. And then haram, if you do not do, it's very good. But if you do it, then it is completely haram. Okay. Wherever you have mentioned very good, na, I want to put there, yani, Yes, add ma'am. there. So Yes, ma'am. whenever we say, like, for example, I'll repeat it in a simpler. I think, please, everyone mute your mic. Let me mute all. Okay. Obligatory, we are supposed to do. If we do it, we will be rewarded. If we don't do, we deserve to be punished.
obligatory, fard, wajib, okay. Mustahab, recommended. If we do it, then what happens? We get extra bonus points. But if we leave it, there is no harm. There is no punishment, of course not. And makruh, if we don't do it, we get benefit, we get rewarded. But if we do it, then it's all right. There's no accountability. Haram, if we leave it, we get rewarded. If we do it, we deserve to be punished. Are we clear? And for halal, definitely if we do it, there is a reward for it. And if we don't do it, then there is no harm in it. It's not compulsory. Can anyone give me an example of some halal aspects? Because this also helps in understanding if we have examples. Can anyone give me an example of an halal aspect? कि कोई चीज हलाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या है कि अगर हम करेंगे तो ठीक है, हमें अजर मिलता है, इट इज परमिसिबल एंड वी आर डूइंग इट, बट अगर हम ना करें तो हम पे कोई भी गुनाह नहीं होगा. Can anyone give me an example of a halal? Anyone? I mean, is it a tough question? कोई हलाल की एग्जाम्पल बताए मुझे. जी नूर. यस अगर नूर. हम जनाजा में जाते हैं तो ये अच्छा है, अगर नहीं जाते तो भी गुनाह नहीं होता. किधर जाते हैं हम लोग? जनाजा, वो हलाल. ये मयत के लिए. मैयत के लिए जाए नहीं जाए, दैट इज अगेन ऐसा कोई नॉर्मल एग्जाम्पल नूर जो कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं. हलाल. हलाल. हलाल के लिए आई डोंट नो व्हाई दैट कंसेप्ट इज सो टफ फॉर यू ऑल, बिकॉज इतनी सारी चीजें हम लोग जो रोज यूज करते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ हलाल थिंग्स. तो क्या मसला है? हाँ जी रशीदा बोलें. हलाल रिस्क बाजी जो अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं. Absolutely, very good. और yes शमीम. All things which Allah has permitted for us. All things I told you which Allah has permissible. I'm asking example from real life. Example from real life I'm asking. Like how खाने पीने की चीजें. जी खाने पीने की जो चीजें हमारे अलाउड है. बिल्कुल, absolutely. और बताएं. निकाह is halal, no? That is also another example. हमारी कमाई, हमारा खाना पीना, okay, ये सारी चीजें जो हम पे हलाल कर दी गई हैं, okay, all that what we use, अल्लाह की नेमतों में से जो चीजें हम यूज करते हैं, think about all those, that which is permissible, that we can enjoy, that we can use, and there is no harm in it. Alhamdulillah, when you use halal, there is no harm in it. Now give me an example of makruh. चलिए मुझे example of makruh दीजिए. Can anyone give me an example of makruh? Anyone? Ma'am, camel meat. Camel meat is makruh? I'm not sure. No, it's not. No, Ma'am, no. what about music, playing musical instruments? Allahu Akbar. Who is saying about musical instrument? Ma'am, me, I'm asking. Me who? Sabak. Sabak. मैम लेफ्ट हैंड से खाना खा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से, लेकिन मकरू है. किसने कहा खा सकते हैं? वैसे कौन एक सेकंड ना, मुझे जरा ये नोट डाउन करने, एक सेकंड मुझे नोट डाउन करने दीजिए प्लीज. जैसे कभी खा लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड से होता है ना, जब कभी उसमें पानी पी लिया किसी ने. सीमा, ओके. सीमा, ईटिंग विद लेफ्ट हैंड ना. जी, वो खाते तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा इंसान खा लेता है ना, तो फिर लेकिन ये मकरू है. हाँ, जैसे Can I tell? Yes, please go. Hadia's mom. Who's that? Mom salam. I'm new one. Okay, ओजड़ी जो होती जानवरों की, वो लोग कई लोग नहीं खाते, लेकिन अगर खा भी ले तो कराहत के साथ तो खा लेते, लेकिन वो मकरूह है. लेकिन ना भी खाएं तो कोई मसला नहीं है. आप श्योर है मकरूह है? नहीं, कुछ कराहत तो उसमें होती है ना.
देखिए आप मकरू को कराहत के साथ मैच कर रहे हैं ना, वर्ड यानी लघवी माने के साथ ले रहे हो, इसलिए शायद आप इसको इस तरीके से मैच कर रहे हो। बट मेरा क्वेश्चन है, मकरू इज समथिंग दैट इज डिसलाइक्ड। अब ये अगर वो रूट वर्ड्स कराहत से आ रहा है, विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन ये जो एस्पेक्ट ऑफ ओजड़ी है ना, ये इनकरेक्ट है, यानी मकरू है ये, इसका आई एम श्योर अबाउट कि ये मकरू नहीं है। स्टिल आई विल चेक फॉर यू इंटेस्टाइन्स, बट it is allowed, that much I know. जी ये मकरू नहीं है। कौन है? समीना जी? जी हलाल है। ऑफ कोर्स हलाल है, that's what I'm telling, बट ये पता नहीं कौन से कंसेप्ट आते हैं ना कि ये मकरू है। और कोई एग्जांपल दे सकता है मकरू की? मैम जिंदगी बचाने के लिए कभी होता है कुछ ऐसी चीज खा लेता आदमी, मकरू होता है। लेकिन ये है कि मजबूरी होती है जिंदगी भर कोई बचाने के लिए कभी। सिस्टर सीमा, हम है लोग ना? नहीं, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी कि अकीदा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, देयर आर थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग नाउ। अभी अब जिंदगी बचाने के लिए तो डेड एनिमल जो अलाउड नहीं है वो भी परमिसिबिलिटी है, बट वो एक्सेप्शन की बात हो रही है, राइट? हम लोग रोजमर्रा में जो चीजें, अभी जैसे हमने ये 5, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट आपको मैंने कहा कि हमारी हर चीज जो है वो 5 कैटेगरी में बटी हुई है, तो वो 5 चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ में काफी सारी चीजें हम लोग जो अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम गलत सलत करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ला इल्मी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज हलाल और मुस्तहब और मकरू और हराम और वाजिब। हमारी अंडरस्टैंडिंग इन कंसेप्ट के बारे में क्लियर नहीं है, और इसी वजह से हमसे गुनाह होते हैं, इसी वजह से हमसे कई बार बिदा और शिरक हो जाती है। तो हमें वो चीजों को, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यस शमीम, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Eating garlic and going to the masjid. Absolutely, beautiful example. Eating garlic and going to And the another masjid. thing is using more water for wudu or ghusl. Using But more less water is permissible for us. That is enough. Absolutely. Barakallah feek. Yes, Ayman. Assalamualaikum. Walaikum assalam While rahmatullahi. fasting, injecting like something multivitamins and all. I can't hear you clearly. Can you come again, please? While fasting, Mm-hmm. can we take taking that injecting multivitamins and all? While fasting, injecting multivitamins is makruh, is what you're saying? Makruh. You cannot Yes, have, come under makruh. you cannot have any sort of nutrition as such while fasting. It is not makruh. Your fast will be invalidated. No, ma'am. I mean to say, तब हम रोजा रहते तो इंजेक्शन वगैरह नहीं ले सकते हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वो भी अगेन इट्स अ फिक मैटर। रोजा के दौरान कोई भी न्यूट्रिशनल चीज, मसलन ग्लूकोज वगैरह आप नहीं ले सकते हैं। वैसे भी ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग एंड ऑल। अगेन उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि अगर वो ब्लड जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, इंट्रावीनस ब्लड आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी, इट विल नॉट अफेक्ट अ पर्सन टू अ लेवल ऑफ बिकमिंग वीक, देन इट्स ओके। And again, there are scholars who says that कि अगर obligatory fast है तो it is better for you to avoid it. ठीक है? But ये आपका question है कि आप बता रहे हो कि ये मकरूह है? नहीं, I thought it's a makruh. अच्छा, you thought it's a makruh. Fine. Yes, Amrin. मैम वॉलंटरी प्रिपेयर करना फजर के और असर के बाद, does that also count under makruh? Voluntary क्या प्रिपेयर करना? मेरे नहीं समझ आई। वॉलंटरी प्रेयर्स करना, जैसे नफिल नमाज पढ़ना फजर की नमाज के और असर की नमाज के बाद। There are certain औकात जहां पर forbidden kind का लेवल है, forbidden का लेवल है, ओके? वो औकात जो हैं वो नून का टाइम है, जेनिथ टाइम, ओके? दैट इज वन टाइम। तो लेकिन मैं मकरू की बात कर रही हूँ, फोरबिडन वाली बात नहीं, ठीक है? तो वॉलंटरी प्रेयर टाइमिंग्स, आपने कौन से 2 औकात बोले? असर एंड फजर, राइट? जी, फजर और असर। ओके, यस रिफका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस मैम, जो नेल्स का जो पानी होता है, नाखून से जो पानी गिरता है, दैट इज मकरूह। दैट इज मकरू माने फिर उसका, यानी आप क्या कह रही हो? नेल्स का पानी किधर गिरता है? व्हाट इज द कंसेप्ट? क्या है कंसेप्ट? क्या है मैम? जैसे जी बोलें। मतलब
किसी भी उस पे जैसे आफ्टर वुदू या फिर वैसे आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, यू शुड नॉट लाइक Do you have it should any not be spill over anything. Rifka, if we are washing our hands or whatever, अगर आप growing nails की बात कर रही हो या आप किस चीज की बात कर रही हो कि बड़े नाखून Yes, ma'am. what But exactly are ma'am, you talking? yes, ma'am, growing nails. अच्छा, growing nails, so you are saying growing nails is makruh? So I'm saying I'm not sure exactly, but I have heard that. This is a problem, Rifka. We are not sure. That's why I'm digging into this subject, because इसी के अंदर सारी गेम हो जाती है और हमें नॉलेज नहीं होता है, और हम अपने तरफ से as usual हम लोग इधर उधर से हियर से लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं ये मकरूह है, ये हराम है, ये हलाल है। हालांकि ये टर्म्स बहुत डेंजरस हैं और हमें बहुत केयरफुली, हाँ, हमें बहुत केयरफुली इनको यूज करना पड़ता है। अभी आप जो बात कर रही हैं ना, नेल्स की बात कर रही हैं, यू आर राइट, मैंने भी सुना हुआ है ये पहले, जब जब जो हमारे दौरे जालियत होता था कि आई नेवर हर्ड अबाउट इट, लेकिन कि नेल्स बड़े हैं तो आपके हाथ से पानी लेना, मतलब बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने सुने थे। लेकिन अगेन व्हेन यू रीड, व्हेन यू स्टडी, जब आपके लिए इनका दरवाजा खुलता है तो यू कम टू नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ सुन्नन, कि जो हमारे फितरा का जो मैटर है जिसमें क्लिपिंग ऑफ नेल्स आ जाता है। अब ये नेल्स से पानी देना या पानी टपकना मकरूह है? नो, दैट आई हैव नॉट heard of. So there is nothing that I have. This was the reason, ma'am. I was confused. This was the reason I asked. I know. I want you all to ask. And you know what? I'm noting it down. मैं सारी चीजें नोट कर रही हूँ. With names, I'm noting it down because उसके related फिर इंशाल्लाह ताला मैं जो है ग्रुप में information डालूंगी. Because last time भी I think you only had discussed or mentioned कि सर ढक के बाथरूम जाना, right? I still remember that point. मैं इंशाल्लाह उसका भी, yes ma'am, हाँ, उसका yes, डिटेल्स भी आपको ग्रुप में डालूंगी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम अननेसेसरी करते हैं और हम उससे फियरफुल भी होते हैं विदाउट करेक्ट नॉलेज। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो तरीका है ना हम वो करेंगे, एंड देन व्हाट इज परमिसिबल हम बेधड़क करेंगे, जहां पर हमें रुकने का हुक्म है वहां हम रुक जाएंगे, जो चीजें हराम की लेवल की है उसको तो उसके पास भी नहीं हम फटकेंगे। इस तरीके का हमारा एटीट्यूड होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हम मकरू से भी बचें, और हमारी कोशिश होगी कि हम एक्स्ट्रा अच्छे और बोनस पॉइंट्स अल्लाह ताला से यानी हम अपने अकाउंट्स में डालें और अल्लाह को राजी करें। सो दैट इज द होल इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। यस अमरीन। मैम, खड़े होके पानी पीना, विल दैट कम अंडर मकरूह कैटेगरी? खड़े होके पानी पीना, खड़े होके इन केस ऑफ वी हैव टू हदीस, हमारे पास दोनों तरफ की हदीसें मिलती हैं। बैठ के पानी पीना इज अ पार्ट ऑफ सुन्ना, इफ नीड भी तो खड़े होकर भी पिया जा सकता है, बट मकरूह लेवल वाला नहीं है। यस शाजिया। Ma'am, delaying the Asr prayer until the sun changes its color. Drinking water while standing. Ma'am, delaying the prayer ना, delaying the prayer, Asr prayer. delaying the prayer असर भी ना, आप सलाह की जो बात है वो मकरू लेवल पे नहीं है, it is an obligatory इबादा, तो it is upon us to pray on time, on the prescribed time, unless there is a genuine reason, but again makruh वाले level पे नहीं है वो। Okay, let me give you a fine example of makruh. Ma'am, one more example can I give? Fasting on the day of Eid al-Fitr. Again, it is forbidden, not makruh level. Okay, ma'am. It is forbidden. Okay, Mohsina, yes, go ahead. Yeah, gossiping, lying, or making fun of others. It's a makruh. My dear sister, this is not of makruh level. आपको लगता है अल्लाह ताला ने कहा कि आप गॉसिप करें? अगर आप करेंगे, मकरूह का क्या है? Laughing too much or gossiping about others. Listen first. मकरूह में क्या होता है? अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फायदा, लेकिन अगर आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इवल्स ऑफ द टंग में गॉसिप का, लाइंग का एंड बैड माउथिंग, बेलिटलिंग का क्या लेवल है, यू नो वेरी वेल, राइट? तो ये मकरूह में आ सकती है? आपको लगता है ये मकरूह में आएगी? बहुत डेंजरस, एब्सोल्युटली नहीं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मकरूह नाउ। आफ्टर इशा, आफ्टर सलातुल इशा जागना, ज्यादा कन्वर्सेशन में एंगेज होना इज अ मकरूह। व्हाट अ फाइन एग्जांपल कि इशा के बाद ज्यादा टाइम जागे रहना, बातें करना, एंगेज रहना is considered makruh. अच्छा, मैं आपसे मतलब this was the question that I had asked, क्योंकि हम लोग जो
I'm surprised nobody spoke about that, and इतनी सारी दूसरी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया. Eating crabs, eating shrimps, what do you think? Yes बाजी, shrimps Ma'am, is this is makruh. makruh है ना? कौन कहता है ये? रशीदा. Yes बाजी, Yes, ma'am, this is makruh. Yes. इसलिए मैं रेज कर लेगी थी बाजी मेरे चांस के अच्छा. लिए. shrimps के बारे में पूछना था मेरे को. अच्छा, आपको लगता है ये मकरूह है? क्यों मकरूह है? Because blood नहीं है उसमें. तो वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मली जो हम लोग छोटी जितनी भी फिशेस खाते हैं, ब्लड कहाँ हमें नजर आता है उनमें? और ब्लड के वजह से मकरूह है, यानी अगर ब्लड भी हम कह रहे हैं, ऐसे बोलते बाजी इसमें खून नहीं है इसलिए वो मकरूह है. Exactly. Sister Rashida, you will not believe, we have a very nice, simple, strong hadith which says anything that comes from the water is halal for us. Halal for us, including shrimps and crabs. Ma'am, ये prawns. Okay बाजी, जज़ाकल्लाह खैर. Vaiyaki. Yes. Prawns, because of arthropods, huh? I can't hear you, Sister Ayman. Sister Ayman, I can't hear you. Prawns comes under that arthropods. इंसेक्ट के अंडर आते हैं ना, इस वजह से वो मकरूह कहलाते हैं. और अगर मैं अभी आपको कहूँ कि हमारे पास हदीस है कि एक सॉर्ट ऑफ ग्रास हॉपर जो है वो भी परमिसेबल है, तो आप क्या कहेंगी? एक सॉर्ट ऑफ लिजर्ड है, डेजर्ट लिजर्ड, वो भी परमिसेबल है, तो आप क्या कहेंगी? ओके. यस सिस्टर Ayman. I'm hearing you. Yes, we have hadith, and it is mentioned very clearly that it is permissible. एक sort of insect है, bug है, जो कि हलाल कर दिया गया है, and there are videos also available. एक sort of lizards है जो desert में पाई जाती है, उसको भी हलाल कर दिया गया है. इनफैक्ट यहाँ पर हमने देखा हुआ है, बदूस खाते हैं. ठीक है. So again, मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसकी कोई दलील नहीं है, और हम लोग सालों साल जिंदगी भर उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं. हम हराम मैटर्स को मकरूह समझ रहे हैं, हम हलाल मैटर्स को मुस्तहब समझ रहे हैं. इट्स अ बिग मेस अप. अब हमको इसको ना, ये जो गुत्थी है या ये जो उलझी हुई जो प्रॉब्लम है, उसको सुलझाना है, उसको धीरे धीरे सेग्रीगेट करना है, और इस तरीके से इंशाल्लाह ताला सेग्रीगेट करना है बेस्ड ऑन कुरानिक वर्सेस, बेस्ड ऑन हदीथ, ओनली ऑन बेस्ड ऑन कुरानिक वर्सेस एंड हदीथ. ये भी हम नहीं बोलेंगे उससे सुना था, इसने कहा था, ये इसकी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है. नो, वी विल शन एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. It is not my desire, it is not my opinion, it is not my suggestion, it is not somebody else's opinion or suggestions, and it is not based on hearsay. I will only do things that has been mentioned in the text, authentic Hasan hadith and Quranic verses. Simple. ठीक है. इस तरीके से ये वाली अप्रोच रख के हमें चलना है. Any question so far? आपके जहन में कोई भी बात? ये सिस्टर रशीदा ने टर्मरिक लिखा है. Yes, locust is permissible, absolutely. What is this turmeric? हाँ, टर्मरिक पाउडर यूज करना मकरूह है बाजी. जस्ट I want to clarify that. No dear, no, nothing of that sort. Turmeric powder बिल्कुल उसके अंदर कोई मकरूह वाले एलिमेंट क्या है? यानी एक बार एक चीज मकरूह होती है, no, should not disconnect. एक बार मकरूह वाले एलिमेंट ये है कि क्या चीज है that makes it मकरूह लेवल, डिसलाइक, क्यों डिसलाइक की जाती है? Turmeric, mashallah, is one of the namas of Allah Azza wa Jal for us to eat and take benefit from. So turmeric definitely नहीं मकरूह कैटेगरी में आती. Okay, बाजी, जज़ाकल्लाह. Vaiyaki. Yes, Shamim and Hadi and Sabah, go ahead. Any food that is impure is makruh? It like will go rotten. it will go in haram level, na? If it is something which contains najasa. Like for example, जैसे हमने वो fiqh वाले lecture में last class में not full najasa, that like the rotten foods or which is spoiled. Anything that is harmful for your body. अब आप मुझे बताएं, सिगरेट की जो दलील है, सिगरेट की कोई डायरेक्ट आयात कुरान में मिलती है? नहीं मिलती. लेकिन उसके अंदर जब उन्होंने स्कॉलर्स ने इसको जब कनेक्ट किया, इज्तिहाद किया, तो क्या बना? एनी मैटर दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, दैट विल गो अंडर द फोरबिडन कैटेगरी. तो उस एंगल से
जाकर स्मोकिंग जो है वो हराम डिक्लेयर हो जाती है, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द हार्मफुल इफेक्ट्स, ना कि सिर्फ एक्टिव स्मोकर बट पैसिव स्मोकर्स ऑल्सो, जो उनके आसपास हैं, वो धुआं भी उनको हार्मफुल कर देता है ना, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो इस वजह से इट गोज अंडर दैट कैटेगरी। अब अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर देते हैं कि हर वो चीज, हर वो शय जो हमारे लिए, इंसान के लिए, माशरे के लिए हराम होगी, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी? जो हार्म करेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगी? You get it? But we have to know, we have to have the daleels, we have to have the consensus of the scholars. यानी हमारे पास वो दलाइल होने चाहिए, either Quranic verses और hadith और the fatwas of the jurists. अगर हमारे पास ये दलाइल मौजूद हैं, तभी हम किसी चीज को हराम, हलाल, मकरूह डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम खुद अपनी सोच और अपनी डिजायर्स और हियरसे से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं आप लोग सबसे एक अर्ज करूंगी कि ये जो सिंपल वर्ड्स हम समझते थे ना, हमने ऐसे उठा के ये हराम है, ये हलाल है, ये मकरूह है, ये परमिसेबल है, ये नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। हम सुनेंगे, हम उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे सही सोर्स से, और फिर हम उसको एस्टैब्लिश करेंगे। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लॉ कि हम लोग खुद बैठ के जो है ना फतवास जारी करने लगते हैं। नहीं करना है ये काम। अब गो बैक टू द बुक्स एंड रिफर टू इट। यस हादिया। वुजू के दौरान में दुनियावी बातें करना, एब्सोल्युटली, टॉकिंग ड्यूरिंग ईटिंग, वुजू के दौरान बात करना। नाउ आप लोगों का देखिए माशाल्लाह अभी जहन चल रहा है, मे बी साथ साथ गूगल भी चल रहा है, आई डोंट नो, अल्लाह आलम, बट चल रहा है। यस, अभी आपका जहन खुल रहा है, आपको समझ लग रही है कि मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ। यस सबा। मैम, अभी आपने बोला एनी मैटर दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी इज फॉरबिडन, एंड इसका एग्जांपल आपने सिगरेट दिया, तो विल इट कम इन द हराम कैटेगरी? It goes into forbidden category, but again, yes, but again, as I told you, we need to have texts, we need to have texts, we need to have evidences, we need to have justification for everything. यानी एक जनरल लेवल पे हम लोग लेकर चलते हैं, जैसे स्कॉलर्स डाल देते हैं उसको कि ये पर्टिकुलर एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कैफीन, ओके, अभी हमने सिगरेट की बात की, निकोटीन, अभी हम कैफीन की बात करें, तो कैफीन भी अगर एक्सेस हो तो वो नुकसान देती है, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। अब उसके बारे में हमारे पास क्लियर एविडेंस है, यानी वी हैव शरिया एविडेंस, वी हैव द साइंटिफिक क्लिनिकल एविडेंसेस, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी? If नहीं, again you are wrong. If the scholars have declared it in the category of forbidden, then forbidden पे जाएगी. But if they have declared it in the level of makruh, तो makruh में जाएगी. यानी हम again अपनी intelligence को use नहीं करेंगे. We are again text dependent. Okay. Right? So basically, मैम, हराम तो वो उसको कहते हैं ना कि जो कि completely prohibited है, and अगर if you do it, you are expelled from the deen. नहीं, right? you are again no, you are not expelled from the deen. हम हराम अगर कर रहे हैं तो हम expelled from the deen नहीं होंगे। हमने अभी शिर्क की बात की है कि जब हम मेजर शिर्क करते हैं तब हम फोल्ड ऑफ इस्लाम से चले जाते हैं। See, there is a difference between committing a kufr and being a kafir. Committing a kufr, you are still in the fold of Islam, but being a kafir, you are out of the fold of Islam. But eating something haram will take you out of the fold of Islam. That's what you're saying? Yeah, that's what I'm asking. No, that's not what I'm saying. Eating any haram substance will not take you out of the fold of Islam. There are layers and level to it. You might be committing a kufr. समझ आई? जी। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, and again I'm saying we have to be dependent and we have to be thorough with our text and knowledge. तब जाके हम लोगों के अंदर clarity इंशाल्लाह आएगी। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, इंशाल्लाह आमीन या रब। लेकिन हमें जो है ना बार बार इन चीजों को दोहराना पड़ता है, रीड करते रहना पड़ता है और टच में रहना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? ओके मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा। मैम, ये जो म्यूजिक होती है, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ये किस कैटेगरी में आएगी? बिकॉज ऐसे तो हर घर में टीवी होता है और हर घर में या इवन आवर मोबाइल्स, तो अ लिटिल और मोर फॉर्म ऑफ म्यूजिक से तो हम एक्सपोज्ड होते ही हैं।
in our day-to-day life. मैं आपको ना म्यूजिक के रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन डालूंगी, बट अगेन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें जो है वो अनअवॉइडेबल है, राइट? ऑल आवर डीड्स आर इंटेंशन बेस्ड, राइट? अब मेरे हाथ में है कि मैं एक पर्टिकुलर म्यूजिक जाके यूट्यूब पे सिलेक्ट करूं और उसको प्ले करूं. What do you think is that? We should not do that. Okay. Now you're telling me कि you're listening to a radio program and some jingle or some music is playing. मेरी intention वो jingle सुनने की है या मेरी intention वो program attend करने की है? Okay. You got my point? Yeah. तो music is a very clear cut matter. Instrument playing, listening, everything is out and out. बट उसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या परमिसिबिलिटी है क्या नहीं है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो परमिसिबल है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. लिरिक्स कैसे हैं, शिरकी या कलेमात वाले लिरिक्स हैं, बिकॉज अगर नशीद और काफी सारे जो हमद सना होती है उसके अंदर भी मसले हो जाते हैं. तो देयर इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ कि कहीं कलेमात शिरकिया ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज हो रही है. एंड देन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी और जो हराम एलिमेंट्स हो रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ बोथ द जेंडर्स एंड अदर थिंग्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दीन, तो ये सब मैटर्स को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा. So outright again certain things are clearly forbidden, but again there are conditions that apply that we have to understand and then decide our parameters. ठीक है? मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल डालूंगी ग्रुप में, बट अच्छे से उसको गौर से पढ़ना. It will be too much of material for you otherwise. Yes, Rifka. Ma'am, I was asking you if there is any authenticated book जिसमें halal, जैसे we read in Quran, we know halal और haram, but बहुत vast नहीं पता है, मतलब basic पता है, क्योंकि because we don't go into deep with it. तो अभी जैसे आप बहुत सारी चीजें आप बता रहे, तो is there any book जो हम लोग उसको use कर सकते हैं, because internet is a place जहाँ पे बहुत vast होता है. And as we don't have much knowledge, तो हम लोग उसका authentication नहीं वो कर सकते. तो if you can just for us a book की we can go through that. बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जैसे ये बेसिकली जो है ना, हम टिडबिट्स में अपना दीन नहीं सीख सकते, हमें जो है ना एक तरतीब से अपना दीन पढ़ना है. ठीक है? सो जो सबसे पहली चीज मैं आपको गाइड करूंगी कि आप करें वो ये है कि कुरान जो है ना, कुरान तफसीर से पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है? दिस इज वन थिंग दैट वी शुड डू बाय डिफॉल्ट. उसके बाद the teachings of aqida जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, this is the subject that I am taking for you now, basics of aqida in regards to permissible and impermissible matters. उसके लिए सबसे बेस्ट है hadith which comes from Bulugh al-Maram, Riyadh al-Salihin, the concise presentation of the fiqh matters. fiqh और hadith पढ़ना, उसमें ये सारे मामलात का खुलासा होता है, बहुत सारे मामलात का खुलासा होता है by the study of fiqh and hadith. ओके? उसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अरबिक लैंग्वेज सीखें. हम हर चीज की लैंग्वेज, हर डिफरेंट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का शौक रखते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन, फॉर सम very crazy reason हम अरबिक को इग्नोर करते हैं. तो learning Arabic language also is a must on all Muslims. Why? Because it is the language of the Quran. It is the language which Allah Azza wa Jal chose for us. तो ये आप पढ़ेंगे. तो ये जो मैंने चंद चीजें आपको बता दी ना, जैसे कि कुरान की तफसीर आप करें, उसके बाद अकीदे की पढ़ाई करें, फिक्र, हदीथ, Arabic language. These are the basic things that we have to begin with. अब इसमें levels होते हैं, of course, everything starts from the scratch. तो level 1 से शुरू करते हुए आगे चलना है. और मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि Google is full of misinformation also. तो मैं आपको ना 2 sites बताती हूँ जो आप any moment, यानी आप जाके उधर कीवर्ड्स डालेंगी और आपको पूरे जस्टिफिकेशन विद वर्सेस एंड हदीथ मिलेंगे. ये मैंने लेक्चर 1 में बताया था. आई विल रिपीट इट अगेन. देयर आर 2 साइट्स दैट यू कैन रिलाई ऑन. वन इज इस्लामिक QA. ओके? इस्लामिक QA में आप कीवर्ड डालेंगी और आपको पूरे दलाइल वहां से इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे. सेकंड इज sunnah.com. इधर आपको सारे हदीसें, रिलेटेड हदीसें मिल जाएंगी with reference numbers and related hadiths, all
pertaining to that subject matter. तो इंशाल्लाह ताला इधर आप रिलाय कर सकती हैं. बट अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि टिट बिट्स में हम अक्सर छोटे छोटे यहाँ से लिया वहां से लिया उसमें हम बिखर के रह जाते हैं. इट इज नॉट अ सॉलिड वे ऑफ लर्निंग दीन. द सॉलिड वे ऑफ लर्निंग दीन इज टू get proper, concise, thorough knowledge from a particular source, which is again reliable and authentic, and then continuously leveling up. ठीक है ना रिफ्का? जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर मैम. Ma'am, I read somewhere that knowledge is vast and we have to choose the knowledge that will benefit us in the worldly life and in the akhirah also. So we have to choose something. Yes. We have to. नहीं, मैं आपसे हमेशा मैं अपने जितने भी सिस्टर्स और स्टूडेंट्स हैं जिनको वो यही कहती हूँ कि ऐसी जमातों से जुड़े रहें जहां पर आपको खालिस दीन पढ़ाया जाए, और सिर्फ एक बार पढ़ के आप सोचें आप फारिग हो गए, ऐसा नहीं है. आप उस प्रोसेस में कंटिन्यूसली रहें. एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, एज अ तालिब इल्म आप कंटिन्यूस रहें और उसके बाद आप उसको आगे पहुंचाते जाएं. व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग इट देन यू कैन रिटेन इट फॉर एवर. ठीक है. और ये जो मैटर्स है ना, ये मैटर हम लोगों की हमारी जिंदगी को सॉल्व करने के लिए का जरूरी है. यानी इट इज नॉट समथिंग दैट आई सेग्रीगेट फ्रॉम लाइफ. इट इज अ वे टू लीड लाइफ. इस्लाम इज अ वे टू लीड लाइफ. तो अगर आपको मामलात ही नहीं पता होंगे तो आप जाने अनजाने में, जहालत में, इग्नोरेंस में आप गलतियां कर रहे होंगे जो कि आपको अनाज़बिल्लाह बहुत भारी पड़ सकती हैं. और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सारी चीजों का इंतजाम हमारे लिए कर दिया. सब चीजों का हमारे लिए इंतजाम कर दिया. He nurtured us. He is a मुदब्बिर. He did everything for us. तो हम लोगों ने वो पिक नहीं किया. वो हमारी प्रॉब्लम है. हम लोगों की कहते हैं ना कि इग्नोरेंस है जिसने हमें रोके रखा. तो हमें जो है इस स्टेट में कंटिन्यूसली रहना है. जैसे मैंने आपसे कहा कि तरतीब से पढ़ना है. जस्ट बाइंग बुक्स, just following some articles, just listening to some lectures will not help. Again I repeat, it will not help. एक नुक्ते को आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, शायद वो आपको समझ आ जाएगी बिइज़्निल्लाह. लेकिन आपको एक प्रॉपर कोर्स करना होगा. आई मे ऑल्सो सजेस्ट IOU BAIS का जो कोर्स है, बैचलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ऑनलाइन इट इज हैपनिंग. फरहत हाशमी के कुरान तफसीर के बहुत प्यारे कोर्सेज हो रहे हैं, एंड कुरानिक ग्रामर एंड अरबिक लैंग्वेज, बैना की अरबिक लैंग्वेज इज अमेजिंग. आप यस रिफ्का? Sorry ma'am, I have missed something because of my internet issue. Can you just repeat? Yeah, I said there is a beautiful course of IOU, Bachelors in Islamic Studies. You can do that. बेहतरीन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं. अकीदा की उनकी बेहतरीन पढ़ाई है. तो बैना की अरबिक ग्रामर है. उसके बाद फरहत हाशमी के कुरान तफसीर एंड अरबिक ग्रामर है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस हैं. तो इस तरीके से आप ये सारे कोर्स जो हैं वो तरतीब से करना शुरू करें ताकि आपकी बेस जो है वो सॉलिड हो, फाउंडेशन बने. Yes, ma'am, I'm moving slow because I'm into studies now. I'm a doctor. I'm preparing for PG. But alhamdulillah, Allah will give barakah in my time, inshallah. So little by little, I am doing, and I want may Allah guide me to the straight path. इंशाल्लाह आमीन या रब. इंशाल्लाह आमीन या रब. यकीन करें आप दुनिया की आप यानी बेहतरीन से बेहतरीन इल्म हासिल करें, लेकिन once you get into the Islamic ilm ना, then there is no end to it. There is no end to it, and it is so satisfying, and it is so beautiful, and it is so filled with serenity and tranquility कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती. And alhamdulillah ma'am, we want to attain more. This is the beauty of Islam or knowledge. I was reading one hadith in which it was it was from Abu Darda radhiyallahu anhu and Abu Abdullah bin Salma, and they have told us about knowledge, and it's so vast. Alhamdulillah, I am reading some Sahaba stories and how they attain knowledge from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and yes, absolutely, strict in their rules, and like we don't have much knowledge. So whatever we have to be firm on that. Absolutely. ना इंशाल्लाह ताला में अल्लाह मेक इट ऑल इजी फॉर अस. बहुत सारी दुआएं करें आप लोग, क्योंकि दुआओं का जो सिलसिला है वो बेहतरीन होता है टू ब्रिंग इन द फहम एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीन. तो बहुत सारी इल्म हुसूल की दुआएं हैं, वो करते रहा करें. अगेन एंड अगेन मैं हर बार रिपीट करती हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा करें. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ रिज़्क़न तय्यब अमलन मुतक़ब्बला. अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वल्लिमनी अनफ़अनी वज़िदनी इल्मा. जितनी भी इल्म हुसूल की दुआएं वो करते रहें. अल्लाह ताला से
मांगे, क्योंकि वो फहम, वो अंडरस्टैंडिंग, उसको फैसिलिटेट करना, वक्त में सेहत में बरकत देना, सारा कुछ खैर और आफियत का मामला जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो मेक दुआ, कॉन्स्टेंटली मेक दुआ, और ऐसी जमातों से, ऐसे कोर्सेज से, ऐसी लर्निंग से जुड़े रहें। एंड डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। I don't deny that self study is the best tool, I would say. तो उसको भी आप अपना एक तरीकाकार बना के रखें और continuously addition करते रहें. There is no end to it. So inshallah we will continue. Alhamdulillah, I enjoyed the discussion today. Even though portion wise we might have covered a bit, but discussion is very important. So inshallah, let's continue next week. I have a doubt. Yes, Mohsina. Yeah, ये gelatin we are using it for in the pastries all, no? It is makruh. Again, Mohsina, gelatin are two types. One is a vegetarian gelatin and one is a non-veg gelatin. Normally, the gelatin that comes from the pork, okay, that is haram. Okay. अभी तो मिल रहा है ना कि क्या बोलता है? It is not added anything like that. Haram things. Even the flavored, unflavored gelatins are available. Okay, so if you are sure about it कि flavored है, unflavored है और haram element से पाक है, then it's okay, no? Then problem क्या है? No, if it is not mentioned, how we will know? Okay. Most of the gelatin it is not mentioned. If it is not mentioned, if it is not mentioned, and if you are not in an Islamic country, then definitely mashkuk होगा. Mashkuk मामलात में क्या है हमारी ruling? If you are doubtful about something, leave it. Correct, na? Yeah. Yeah, leave it. If you are doubtful about something, leave it. लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक कंट्री में हैं, उन लोगों ने, उनकी बलदिया म्युनिसिपैलिटी जो है वो चेक करके ला रही है, सारा कुछ ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड एंड यू डोंट हैव एनी डाउट्स, then you can use it without any waswas. But if you are having suspicion, then leave it. Okay. ठीक है ना? That's what I. जी. Okay. जी. So inshallah we'll conclude here and we'll take fiqh and inshallah see you all next week. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. I'll just stop the recording and we'll continue again the fiqh.